Hello and welcome back to the channel everyone. 10th standard students, this is your 5th chapter lecture for your geography subject. This is Basit sir. I hope people must be remembering me. Let us get started with chapter number 5, natural vegetation and wildlife. This chapter comprises of 4 parts: natural vegetation and wildlife of Brazil, India, Brazil, India. Brazil का vegetation, India का vegetation. Brazil का wildlife, India का wildlife. चैप्टर को हम लोग 4 पार्ट्स में कवर करेंगे in one lecture, not in 4 lectures. Okay, so let us get started. They have given you some questions regarding the images they have given you on the top of the page 32. उसमें हम लोगों को कैक्टस का झाड़ दिख रहा है, बोर का पेड़ दिख रहा है, then we have a bird, then we have cheetah, then we have python, I guess. So these are the types of animals which we can see in the following image on that particular page. So let us get started with the chapter. You might have recognized the species shown above and discuss about them because there is similarity between them and many Indian species. But these species are found in Brazil. Look for their names. Now we will study about the variety of flora and fauna in Brazil. ये तो तुम लोगों ने देख लिया है, ये जितने भी एनिमल्स वगैरह है, जितना पेड़ वगैरह है, ये देखने के बाद हम लोग को ये नहीं लग रहा था कि मतलब कि ब्राज़ील का होगा खाली, ये हम लोग को लग रहा था कि इंडिया का पार्ट है, बट these animals are found in Brazil as well. Okay, so we are going to study about flora and fauna of Brazil right now in this particular part. In figure 5.2, if you see carefully, they have given you rainfall, flora that is flowers, and fauna of Brazil. ठीक है, कौन से एरिया में कैसे टाइप का वेजिटेशन है, कितनी रेनफॉल है, कितना हाइट है और कौन से टाइप के ज़्यादातर एनिमल्स मिलते हैं. ठीक है, दे हैव गिवन यू ओवर देयर. ओके, उनके प्लेसेस के नाम भी दिए हैं उन्होंने. क्लियर? The change occurring in the above elements while going. See please, if you are referring to this particular lecture from the video, please open your textbook and set and पॉज करके देखा करो. मैं जो भी इमेज देखने बोलता हूँ उसके बाद लेक्चर को रिज्यूम किया करो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी पीसफुल एंड प्रॉपर टाइप ऑफ मैनर. ओके, सो लेट अस गेट कंटिन्यू विद द चैप्टर. एज ओके, किधर गया? डिस्कस अबाउट दिस इन द क्लास एंड राइट अबाउट द नोट अबाउट इट. दिस इज पर्टिकुलरली अ टाइप ऑफ you can say that field work they have given you, but no need to do that particular thing right now. Geographical explanation of Brazil vegetation. Let us get started with the first part of the chapter, that is Brazil's vegetation. In Brazil, rainfall varies due to physiography. अलग-अलग रीजन में अलग-अलग टाइप के रेनफॉल है. Most part of the equatorial region it rains throughout the year. ठीक है, if you don't know, जो कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेनफॉल ऑकर्स इन इक्वेटोरियल एरियाज. सो ब्राजील का जो अमेज़न बेसिन है वहां पर थ्रू आउट द ईयर बारिश होती है इन द आफ्टरनून. एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर यू विल सी रिडक्शन इन द रेनफॉल. दिस इफेक्ट्स द लाइफ साइकिल ऑफ द वेजिटेशन टू. सो अमेज़न बेसिन यानी कि इक्वेटोरियल एरियाज में तुमको बारिश ज़्यादा मिलेगी जिसकी वजह से वेजिटेशन अच्छा है वहां पर. Whereas the places of Brazil which are not in the equator faces less rainfall and has a type of, you can say that, semi-arid type of region. Evergreen forest is found in the areas where it rains throughout the year. In regions which receives rainfall only during certain seasons, the density of the vegetation is reduces. जहाँ पर बारिश कम वहाँ पर वेजिटेशन कम, जहाँ पर बारिश ज़्यादा वहाँ पर वेजिटेशन ज़्यादा. जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट हम लोग को देखने मिलेगा. ठीक है, इंस्टेड ऑफ फॉरेस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स, शॉर्ट shrubs, thorny vegetation etc. are found in the areas where it rains in seasons or less rains. जहाँ पर पूरे साल बारिश होती है वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट, पर जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर थॉर्नी टाइप ऑफ और shrubs तुम लोगों को देखने मिलेंगे, short heighted trees मिलेंगे तुम लोगों को. Brazil has the largest number of vegetation species in the world. ठीक है, this includes evergreen vegetation, semi-evergreen, arid, etc. One find trees like pau Brazil, rubber, mahogany, rosewood, and variety of orchids in the vegetation of Brazil. समझ में आ रहा है? These are the types of trees or vegetations you will find in Brazil.
Because of the evergreen rainforest in the Brazil, there is a large amount of oxygen that is released in the environment. This helps to reduce the carbon dioxide levels. Therefore, these rainforests are rightly called as the lungs of the world. इतना बड़ा एवरग्रीन फॉरेस्ट होने की वजह से ब्राजील का वो पार्ट लंग्स ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है. वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होता है. कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को रिड्यूस किया जाता है वहाँ. समझ में आ रहा है? Now, coming to India vegetation, they have given you certain questions. So, with the help of map, you have to solve that particular question. इंडेक्स में देख लो एक बार मैप के कि वहाँ पर कौन से कलर कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट को डिपिक्ट करता है. सो आई गेस सबसे ज़्यादा अपने इंडिया में डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट है. फिर उसके बाद इफ़ वी सी एवरग्रीन फॉरेस्ट, थॉर्नी श्रब्स है बट ज़्यादा नहीं है. हिमालयन फॉरेस्ट जो है वो भी है और कोस्टल फॉरेस्ट जो है वो भी एक फेयर अमाउंट में है. ठीक है, क्लियर? सो वी हैव मोस्टली वी हैव डेसिडियस फॉरेस्ट. फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन इंडिया. जो मैप में दिया है वो सबकी बात हो रही है यहाँ पर. इन रीजन्स विच रिसीव मोर देन 2000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल ऑन एन एवरेज अलॉन्ग विद द अबंडेंट सनलाइट, एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड. यहाँ पर 2000 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट तुम लोग को देखने मिलेंगे. मुंबई इज वन ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट जोन ऑफ इंडिया. यहाँ पर 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है और सनलाइट तो हमेशा रहती है. बारिश के टाइम पे भी कभी होती रहती है. The leaves of the trees in this forest are broad and green. The trees are hardwood, heavy and durable. Trees यहाँ के durable होते हैं, वो आंधी तूफान वगैरह आने से easily गिर नहीं जाते हैं. Example: mahogany, rosewood, rubber, etc. Also there are various type of creepers found here. यहाँ पर तुम लोग को creepers भी मिलेंगे. एक creeper जो तुम लोग घर में पालते हो, हम लोग घर में पालते हैं, वो है और कुछ नहीं पालते मतलब उगाते हैं. दैट इज कॉल्ड मनी प्लांट. मनी प्लांट इज ए क्रीप टाइप ऑफ प्लांट. दे डिपेंड ऑन अ प्लांट विच हैज स्टेम. हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट. सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी अगर कोई फॉरेस्टेड एरिया में पाई जाती है इंडिया में तो वो है ये फॉरेस्ट. इन रीजन्स रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 1000 मिलीमीटर टू 2000 मिलीमीटर वी सी दीज फॉरेस्ट एज डेसिडियस फॉरेस्ट. ये कौन से टाइप के फॉरेस्ट होते हैं? Deciduous type of forest. In dry season, trees shed their leaves so that water is not lost due to the evaporation. यहाँ पर जो dry seasons आते हैं तो trees जो है अपने वो leaves छोड़ देते हैं जिसकी वजह से वो लोग water को बचा के रखते हैं. अगर leaves में पानी चला जाएगा तो leaves सूखने के बाद evaporate हो जाती है. ठीक है, leaves का पानी evaporate हो जाता है तो पानी पेड़ सूख भी सकता है, मर भी सकता है. So in order to avoid that particular thing, they shed their leaves. For example, teak, bamboo, banyan, peepal, etc. are the trees which are found in this forest. जो रीजन में 500 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है वो ड्राई समर्स वाले रीजन होते हैं जहाँ पर समर बड़े होते हैं. वहाँ पर तुम लोग को थॉर्नी श्रब्स टाइप के फॉरेस्ट वेजिटेशंस मिलेंगे. यहाँ पर कौन से टाइप का तुमको पेड़ मिलेगा? देखो, कटेचू, अकेशिया, केजरी, खिजरी, ये सब वैरायटीज ऑफ कैक्टस तुम लोग को मिलेंगे. ठीक है, एलोवेरा और अगाव, ये सारे टाइप के कैक्टस और ड्राई टाइप ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज तुम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगे. क्लियर? स्वैम्पी एरियाज यानी कि जो कीचड़ वाले या जो दलदल वाले जो एरियाज है, एस्चुअरीज है, लगून्स है, ये सब कोस्टल एरियाज के पार्ट जो है वहाँ पर तुम लोग को सलाइन सॉइल मिलेगी जिसकी वजह से वहाँ का क्लाइमेट जो है उसके हिसाब से वेजिटेशन, क्लाइमेटिक कंडीशन और सॉइल जो है वहाँ की ड्राई नहीं है बट सलाइन है. ठीक है, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग रिजल्ट्स इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन. They are called as mangroves और सुंदरबंस in India. क्या बोला जाता है? मैंग्रोव और सुंदरबंस. ये सारे ट्रीज जो है ऑयली होते हैं, लाइट होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं. ओके. In Indian Himalayas, 3 types of forests are found according to the altitude. 3 टाइप के फॉरेस्टेड एरियाज तुम लोग को हिमालयाज में मिलेंगे with their varying different types of heights. So उसको स्टडी करते हैं. जो सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड वाला होता है, सीजनली फ्लावरिंग ट्रीज आर फाउंड. वहां पर क्या मिलते हैं? सीजनल फ्लावरिंग ट्रीज. कुछ सीजन में वहां पर फ्लावर्स भी आते हैं. इन रीजन्स विद मॉडरेट या और मीडियम हाइट, कॉनिफरस ट्रीज आर फाउंड लाइक पाइन, देवदार, फर
एंड जो फुटहिल्स वाले होते हैं वहां पर मिक्स टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलेंगे तुम लोग को, ठीक है। दिस इंक्लूड्स बोथ कॉनिफरस एंड डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, दोनों मिक्स रहते हैं। हियर द प्रोपोर्शन ऑफ साल ट्रीज इज हायर, यहाँ पर तुम लोग को साल ट्रीज बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलेंगे। क्लियर। ब्राजील की वाइल्ड लाइफ अभी हम लोग पढ़ते हैं। ब्राजील वेजिटेशन हो गया, इंडिया वेजिटेशन हो गया। ब्राजील वाइल्ड लाइफ चालू करेंगे, इंडिया वाइल्ड लाइफ से खत्म करेंगे, ठीक है। सो दे हैव गिवन यू सर्टेन नेम्स, जो तुमको वो लोग ने बोला है कि मैप में देखकर बताना है तुमको कौन से स्पीशीज है। तो आई कैन सी स्नेक, दैट इज एनाकोंडा है। फिर आई कैन सी सर्टेन टाइप्स ऑफ फिशेस, फिर यू कैन से दैट क्रोकोडाइल है वहाँ पर। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हम लोग को वहाँ पर मिलेंगे। बर्ड्स है, फ्लेमिंगोस है, ठीक है। अ ग्रेटर डाइवर्सिटी इन वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन ब्राजील देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ एनिमल्स तुम लोग को अगर कोई दुनिया के कोने में मिलेगा तो वो है ब्राजील में। कहाँ पर? ब्राजील में। इन द स्वैम्पी एरियाज of the Pantanal, huge anacondas are found. In Brazil, guinea pigs, crocodiles, alligators, monkeys, pumas, leopards, etc. are found. Among the fish varieties, mainly swordfish जो है वो सबसे ज़्यादा मिलती है, while pink dolphin and piranhas are found in the rivers. पिंक डॉल्फिन और पिरानास भी मिलेंगे जो रिवर्स में है। सी में तुम लोग को कैटफिश ज़्यादातर मिलेगी, सॉरी स्वॉर्डफिश ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। Condors, which are huge in size and fly high in the sky, various types of parrots, macaws and flamingos are the major type of birds found here. बड़े बड़े birds भी तुम लोग को यहाँ पर मिलेंगे जो बहुत हाई स्काई तक उड़ने वाले हैं, ठीक है। As a result of these varieties, the wildlife of Brazil is very rich and diverse. इस वैरायटी की वजह से ब्राजील की जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत हाई है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको? डिग्रेडेशन, अभी एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की वजह से, इलीगल स्मगलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स की वजह से, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो फॉरेस्ट को डिग्रेड किया जा रहा है और डिफॉरेस्टेशन और पोल्यूशन की वजह से वाइल्ड लाइफ ऑफ ब्राजील इज गेटिंग रिड्यूस्ड। एंडेंजर्ड एनिमल्स का जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, एक्सटिंक्शन पे आ गए हैं कुछ एनिमल्स। तो दिस इज वेरी बैड थिंग फॉर ब्राजील, ओके। इंडिया वाइल्ड लाइफ, नाउ they have given you a particular job. Now they have given you certain 10 names: Bengal tiger, lion, great Indian bustard, Gangetic dolphins, olive, red turtles and certain, ये सारे जो नाम है, ये सारे नामों को तुमको बताना है कि इंडिया में कहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। Now show the following animals in the outline map of India in figure 5.5 with the help of the signs and symbols according to their habitats. Answer the following questions. They have given you 10 animals. They have given you the map. I need you people to please complete that particular task for me. I know you people can do that. ठीक है? It is easy if you find it very nicely. तुमको चैप्टर मैंने पिछले बार तो if you can see that India का मैप तुमको दिया है. You need to find out where what particular type of animal is found. ये तुम्हारे लिए टास्क है, ठीक है। खुद करो, इट इज क्वाइट एन इजी जॉब फॉर यू पीपल। करो एक बार, देखो, ट्राई करो। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, यू पीपल विल डू गूगल, ठीक है। दैट डोंट डू दैट, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो, खुद से बुक से रिसर्च करने की कोशिश करो, ना कि सीधा मोबाइल में घुस जाओ, ठीक है। Coming to geographical explanation, India is also a mega diverse country in the terms of wildlife. There are many species of wildlife in India. Elephants are found in hot and humid forest. One-horned rhinoceros are found in swampy and marshy lands of Assam. Wild ass and camels are found in arid lands. Snow leopards and yaks are found in snow-capped regions of Himalayas. Indian bisons, deer, antelopes and monkeys are found in the peninsular region. ये सारे अलग अलग regions में, if you see, we have different types of regions, and in that different types of regions we will find different types of animals. So it is quite a huge diversity. India also has quite a huge amount of diversity of species, animal species. India is the only country in the world where both tiger and lion are found. Wow, I don't know, ये चीज पहली बार सुनी।
Rivers, estuaries, and coastal areas are homes of many turtles, crocodiles, and gharials. That is gharials. Gharials भी एक टाइप के कोई तो एनिमल होंगे, प्लीज वो भी एक बार गूगल कर लो. There are certain names of the animals which I am reading for the first time. होंगे, इसका कोई easy नाम होगा, ठीक है. The forest and wetlands are the shelters of variety of birds like peacocks, Indian bustards, kingfisher, peasants, ducks, parakeets, cranes, and pigeons. These are the huge amount of birds, prominent birds found here in India. All these species make it a land of unique habitat of wildlife. So wildlife is very diverse, very rich in India as well. Not just Brazil, but India also has a huge rich diversity of wildlife. Many species of wildlife are found on the verge of extinction from India because of poaching, pollution, and rapidly occurring deforestation. Deforestation की वजह से poaching यानी कि उनका दांत, उनके स्किन को निकाल के मार के उनके स्किन को यूज़ करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए जब एनिमल्स को मारा जाता है, जिसकी वजह से आज एनिमल्स एक्सटिंक्शन या यू कैन से दैट खत्म होने के कगार पर आ गए हैं. सो दैट शुड नॉट हैपन. चीतास इसका एक बहुत लाइफ एग्जाम्पल है, बहुत कम हो गए हैं चीता भी. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट इन इंडिया. इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे टाइप ऑफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए हैं, जिसको बनाया क्यों गया है, जस्ट टू प्रोटेक्ट द स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, so that they can stay there in a very comfortable and very safe manner and human beings के नज़रों से दूर और human beings से दूर. Okay, so this was small chapter. I hope you people have understood this particular thing. मैंने जो मैप वाला काम दिया है उसको प्लीज़ कर देना. अगर नहीं समझ में आया तो उसको कमेंट डाउन करके तुम लोग पूछ सकते हो, सर इसको भी एक्सप्लेन कर दो एक बार. अगर ये लेक्चर पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक कर सकते हो, अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो, नहीं समझ में आया तो वापस देख सकते हो, नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है. और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ. दिस वाज बासित सर. थैंकिंग यू फॉर behaving like such a good audience. Thank you so much with this particular thing. I will wind up my lecture over here. Bye bye.